हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? All well, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, गुड आई मॉर्निंग होप ऑल सर। ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। So again, this is another session, right, from Camp Prep, and I believe that most of you have already interacted with me. So I will not spend too much time on what we do and what exactly what we are planning to do. You all know that this session is again about what is the what should be your strategy, right, regarding placements, right? So we did last time session on that how you should utilize your time. Then we did one session on the quiz, right, the campus quiz, and this is something which we are discussing today. That is about the ICI campus placement program. Definitely for last so many years, I also got placed through ICI campus placement program almost 15 years back. And with every attempt, right, I've seen that the packages are increasing, the number of companies who are participating, they are increasing, and the acceptance of CA, the profile is also improving. So overall, the campus is definitely becoming better and better with every passing year. And of course, it's a great news for all of you. So we will talk about everything related to the campus and whatever questions you have right in your mind. Definitely feel free to ask. So uh, there are many aspects to that, right? The first aspect is that how many of the students that get qualified and how many appears. Yes, there's some broad statistics about the campus. You all know that with in every attempt, right, almost 10, 12,000 or 13,000 students become chartered accountant. Yes, so broadly it is the percentage varies from 10 to 12%, right? Or I definitely wish all of you that you will be in that top slot of 10 to 12%. यस, रिजल्ट्स आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो मेरा यही आप लोगों को मेरी विशेष है कि आप उन टॉप 10% 12% लोगों में रहो. 10,000 to 12,000 students generally become chartered accountant. After that, again, like 60-70% opt for campus, right? तो अगर आप past statistics देखते हो, तो number of candidates who got registered, definitely they have also increased 7,400 to now 10,000. तो रजिस्ट्रेशन करीब करीब 10,000 लोग करवाते हैं इस पर. Uh, कितने लोगों को जॉब ऑफर हुआ है? तो समवेयर अराउंड 5,000 इन द लास्ट कैंपस, राइट? जब हम अगर अगस्त सितंबर की बात करते हैं, लोगों ने एक्सेप्टेंस 3,500 स्टूडेंट्स ने एक्सेप्टेंस दिया है. तो बहुत ही अगर ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं तो अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स विल रजिस्टर एंड क्लोज टू 3,500 to 4,000 स्टूडेंट्स विल एक्सेप्ट द ऑफर. सिलेक्ट ज्यादा लोग होते हैं लेकिन एक्सेप्ट कम करते हैं. उसका रीजन ऑफ कोर्स ये रहता है कि ऑफ कैंपस दे गॉट सम बेटर अपॉर्चुनिटी, इसलिए सम ऑफ देम डू नॉट एक्सेप्ट द ऑफर. सो अगर हम बात करते हैं 10,000 में से अराउंड 3,500 इज गुड नंबर. ऑलमोस्ट 35% गेट प्लेसमेंट्स थ्रू कैंपस. बाकी स्टूडेंट्स का क्या रहता है? बाकी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं. ठीक है. अगर इसमें हम बात करते हैं दूसरा बड़ा सवाल जो नेचुरली आना ही चाहिए आपके माइंड में, दैट व्हाट आर दी हायर पैकेजेस. यस, हायर पैकेजेस किस रेंज में जाते हैं? सो हायर पैकेजेस, इफ यू विल सी इन द 56th कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम, 31 lakhs that was offered, and highest salary for international posting was 41 lakhs, right? So the higher packages definitely are increasing again and again. 31 lakhs, 32 lakhs, 35 lakhs also. बट ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, राइट, ये मुश्किल से 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टूडेंट्स को मिलती है. आज का सेशन केवल ये नहीं है कि लाइक आई हैव टू शो यू द रोजी पिक्चर, राइट? केवल हर चीज अच्छी अच्छी नहीं बतानी मुझे. आप, मेरा पर्पस ये है कि यू शुड बी अवेयर विद द रियलिटी ऑल्सो, राइट? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग केवल रोजी पिक्चर बता के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर स्टूडेंट्स उस माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं. नो, बट द real thing is you should know the reality also. So out of this 3,500, only few, yes,
maybe top 2, top 3, top 5, they get this higher packages. अगर आप इसको ऐसे समझोगे तो the higher packages is on 31 lakhs, average goes somewhere around 12 lakhs. Yes, अगर लास्ट टाइम का हम एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो लास्ट टाइम की ये फेब मार्च की रिपोर्ट है, इसमें भी करीब 10,000 लोग बैठे थे और टोटल कंपनीज 189 कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा था. 28 lakhs was the highest package here. Okay, or 12.45 is the average salary, right? So overall, if you will see that the average is somewhere around 12.45. So one has to be very, very clear about ki average kitna hai. And when we are talking about average, right, 12.45, that is the including the higher side also, right? तो आपको जो एग्जैक्ट पैकेजेस हैं जिसमें आप फिट बैठते हो उसको उसका आइडिया लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स ऐसा बोलते हैं कि इज द बिगेस्ट लाई इन द वर्ल्ड. यस, स्टेटिस्टिक्स से हमेशा एक कंफ्यूजन होता है. सो वी कैन नॉट अज्यूम कि लाइक हमें 12.45 ही मिलेगा. यस, उसमें ये सिंपल एवरेज है, राइट, वेटेड एवरेज नहीं. तो बी क्लियर ऑन दैट पार्ट, राइट. तो ये तो ब्रॉड स्टेटिस्टिक्स है. और आई ऑलवेज बिलीव कि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग, इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन आई एम 100% श्योर कि ऑन हायर साइड ही रहना चाहिए. यस, जो भी बेस्ट पॉसिबल पैकेजेस हो सकते हैं, राइट, यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट. नाउ सेकंड इज दी विच ऑल सेंटर्स, राइट. इसमें अलग अलग सेंटर्स रहते हैं. तो सेंटर्स दो कैटेगरी में होते हैं, राइट. एक कैटेगरी होती है लार्ज सेंटर्स की. ओके, लार्ज सेंटर्स लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर एंड पुणे, राइट. सो ये सभी सेंटर्स कौन से हैं? लार्ज सेंटर्स हैं. ठीक है. तो कैंपस दो पार्ट में होता है. पहला पार्ट होता है लार्ज सेंटर्स. यस, लार्ज सेंटर्स जैसे ये हम लोग अगर ये एग्जैक्टली बात करें तो एक साल पहले के नंबर से, और हो सकता है एग्जैक्टली यही डेट्स हों. यस, तो जैसे कि लास्ट ईयर की बात करें तो 21 फेब से कैंपस स्टार्ट हो गए थे, 21 फरवरी से, वैलेंटाइन डे के एक वीक बाद. यस, तो प्राइमरीली ये हुआ था कि इस बार भी यही पॉसिबिलिटीज दिखती है. आप अगर देखोगे तो रिजल्ट्स फर्स्ट वीक ऑफ जैन में एक्सपेक्टेड है, तो उसी तरह की सिचुएशन इस बार भी हो सकती है. तो आपको अपना माइंडसेट इसी तरह से रेडी रखना है कि थर्ड वीक ऑफ फेब, यस, अभी दिसंबर चल रहा है, जैन एंड फेब, राइट, तब आपके इंटरव्यूज लाइन अप हो सकते हैं. सो मुंबई से स्टार्ट होता है कैंपस, मुंबई, और उसके बाद ये सभी लार्ज सेंटर्स की कैटेगरी में. जनरली ये जो सेंटर्स होते हैं, इन सेंटर्स को कौन से सेंटर को सिलेक्ट करना और नहीं सिलेक्ट करना, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बात करेंगे. बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट फर्स्ट देयर विल बी लार्ज सेंटर्स. ओके, लार्ज सेंटर्स का जो प्रोसेस है, राइट, ये 21 फेब से स्टार्ट हो रहा है और 17 मार्च, राइट, आपने देखा इधर लास्ट जो है दैट इज 17 मार्च, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर एंड पुणे, यहाँ पर ही खत्म हो गया. ठीक है. तो 17 मार्च तक ये कैंपस चला. जो लोग इस पर्टिकुलर लार्ज सेंटर में सिलेक्ट नहीं हो पाए, राइट, उनको वापस से मौका मिलता है, और उनको मौका मिलता है स्मॉल सेंटर्स में. तो स्मॉल सेंटर्स स्टार्ट हुए थे 30 अप्रैल से, राइट. तो इस बार भी ये पॉसिबिलिटी है कि मार्च में लार्ज सेंटर्स खत्म होंगे और अप्रैल में स्मॉल सेंटर्स के इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे. स्मॉल सेंटर्स में यू कैन सी दी नेम्स, राइट, दुर्गापुर, नागपुर, लखनऊ, राजकोट एंड मेनी अदर सेंटर्स, राइट. तो ये प्रोसेस भी करीब 10-12 डेज चली. तो आई बिलीव ये पार्ट क्लियर है आप लोगों को कि फर्स्ट देयर विल बी लार्ज सेंटर्स. ओके, उन लार्ज सेंटर्स में अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि मिलती है स्मॉल सेंटर्स. ठीक है. स्मॉल सेंटर्स में भी अब दो कैटेगरीज हो गई हैं, एक स्मॉल सेंटर और एक न्यू सेंटर्स, राइट. तो उसके बारे उसमें भी एक जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा. बट दिस इज पार्ट इज आई बिलीव इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, अब आप लोग कौन सा सेंटर सिलेक्ट करते हो? यस, ये एक मेजर सवाल है.
और इसको भी हम लोग लेते हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ठीक है, सो वंस यू आर क्लियर अबाउट कि कौन से सेंटर्स होते हैं, यस, लार्ज में और स्मॉल में, ठीक है, उसके बाद एक और सवाल आता है कि हाउ मच सैलरी इज ऑफर्ड इन ईच सेंटर। हर सेंटर की प्रायोरिटीज क्या होती हैं। तो जब भी कोई सेंटर, जैसे कि लाइक मुंबई सेंटर की बात करते हैं, तो मुंबई सेंटर में इफ यू सी, इट स्टार्टेड ऑन 21 Feb एंड वेंट ऑन फॉर 10 March। 21 फरवरी से 10 मार्च तक ये कैंपस चला था। तो जो सबसे हाई पैकेजेस की कंपनी आती है वो कब आती है, पहले दिन, राइट, 21 Feb। 21 तारीख को सबसे ज्यादा पैकेज की कंपनीज आती हैं, राइट। तो मतलब जो पहला दिन होता है, राइट, उसको जनरली कई लोग जीरो डे भी बोलते हैं। तो जो जीरो डे पर सबसे ज्यादा पैकेजेस ऑफर, ओके, तो कितने पैकेजेस ऑफर होते हैं मुंबई की अगर बात करें तो 20 lakhs। यस, 20 lakhs उसका उन्होंने रिक्रूटर्स को क्राइटेरिया दिया हुआ है कि नो कंपनी कैन पार्टिसिपेट हु इज ऑफरिंग लेस देन 20 lakhs। 20 लाख से कम अगर आप ऑफर कर रहे हो तो आपके दरवाजे हमारे लिए बंद है। यस, और उसमें लेकिन दो प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी उन कंपनीज को जो 17 lakhs ऑफर कर रही है, लेकिन मिनिमम दे हैव टू टेक एटलीस्ट 15 कैंडिडेट्स, राइट। तो पहला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने आईएम्स के भी बारे में सुना होगा कि जीरो डे प्लेसमेंट, हर इंसान जीरो डे प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा होता है आईएम्स में भी। तो जीरो डे इसलिए क्योंकि वो सारी जितनी भी क्रीम कंपनीज हैं जो हम हायर पैकेजेस की बात कर रहे हैं, ये सब पहले दिन ही आती है। तो क्या है आपके हाथ में, जीरो डे की कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होना, राइट। क्योंकि बताया तो ऐसे ही जाता है कि लाइक आप इस इन कंपनीज के लिए तैयारी करें, लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बोला है कि वन हैज टू बी वेरी क्लियर इन टूडेज सेशन। उसके बाद डे वन की बात करें तो 14 lakhs, दैट इज द मिनिमम पैकेज। डे टू 11.5 lakhs, डे थ्री 10.5, और डे फोर 9.5 एंड डे फाइव 9 lakhs। यस, तो जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते जा रहे हैं, ओके, पैकेजेस हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। स्टार्टिंग हुई थी 20 lakhs से, और उसके बाद धीरे धीरे इट केम डाउन टू 9 lakhs। यस, लेकिन अच्छी बात यह है कि 9 lakhs से नीचे नहीं है। यस, सो मिनिमम इज 9 lakhs। सो आप उतना तो इंश्योर कर सकते हो कि अगर आप कैंपस में जा रहे हो, मिनिमम 9 lakhs इज देयर, राइट। तो आपका जो एक फ्लोर है, राइट, फ्लोर इज सेट दैट वी विल नॉट गेट बिलो 9 lakhs इन द कैंपस, ओके। लेकिन हर कंपनी का जो सीटीसी का ब्रेकअप होता है वो अलग अलग होता है। तो जब आपको सीटीसी ऑफर की जाए तो आप लोग उस चीज को भी अच्छे से देखिएगा, दैट जो 9 lakhs उन्होंने लिखा है, राइट, वो उसका ब्रेकअप क्या है, ठीक है। प्रायोरिटी टू के केस में भी 9 lakhs इज द मिनिमम। सो लार्ज सेंटर्स की अगर बात करते हैं तो 9 lakhs मिनिमम पैकेज ऑफर किया जाता है। अगर हम बात करें स्मॉल सेंटर्स की, तो स्मॉल सेंटर्स में भी 9 lakhs इज द मिनिमम, राइट। तो ये तो एक बात आप सोच सकते हो कि मिनिमम 9 lakhs इज देयर। लेकिन जो न्यू सेंटर्स हैं, राइट, न्यू सेंटर्स लाइक भोपाल, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची और वडोदरा, राइट, ये जो 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर्स में 7.2 lakhs वॉज द मिनिमम पैकेज, ठीक है। तो अगर किसी का लार्ज में नहीं होता है, स्मॉल में नहीं होता है, और फिर न्यू सेंटर्स जो है अभी उसमें अगर जाकर होता है, तो वहां पर मिनिमम 7. तो ये बात होगी पैकेजेस की, ओके। अब यहीं पे आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट है दैट वी शुड अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ कंपनीज, कितनी कंपनीज के सेंटर में पार्टिसिपेट करें। तो अगर आप ट्रेंड देखते हो तो ट्रेंड जनरली रिपीट होता है, और इस ट्रेंड के हिसाब से लार्ज सेंटर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कंपनीज आप देखते हो मुंबई में आई है, और ये ट्रेंड काफी कंटिन्यू हो रहा है। सबसे ज्यादा कंपनीज मुंबई में आती है। आफ्टर दैट यू विल सी बैंगलोर, दिल्ली, राइट, ये दोनों सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें सेकंड हाईएस्ट कंपनीज आती हैं। आफ्टर दैट इट इज देन पुणे इज आल्सो गुड, जयपुर इज गुड, यस, चेन्नई, यस, जो साउथ से जो लोग हैं, दैट इज देयर। सो पॉइंट क्या है इसके अंदर, पॉइंट ये है कि नंबर्स, अगर आप नंबर्स देखते हो तो कुछ नंबर्स काफी वेरी कर रहे हैं। जैसे अगर आप जयपुर सेंटर देख रहे हो तो 20 कंपनी थी दिसंबर 21 में, और उसके कंपेयर नवंबर 19 में ओनली 9 कंपनीज और थे, ठीक है। पुणे का देखो आप, पुणे नवंबर 19 ओनली 5 कंपनीज, दिसंबर में 23 कंपनीज। सो
एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट के नंबर्स को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ये अटेम्प्ट्स के नंबर्स, ये कंपनीज के नंबर्स बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको एक ट्रेंड देखना है। जैसे कि इसमें अभी लास्ट 2-3 अटेम्प्ट के नंबर्स अगर हम पुट अप कर देंगे, तो यू विल फाइंड दैट दीज नंबर्स आर वेरिंग अ लॉट। ओके, तो वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट विच सेंटर टू सिलेक्ट। ठीक है, सेंटर सिलेक्शन का मैं आपको 2-3 क्राइटेरिया बता देता हूँ। अगर आप जब भी आपको सेंटर सिलेक्शन का टाइम आएगा, ठीक है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा सेंटर सिलेक्ट करें। मैंने अधिकतर लोगों के केस में देखा है कि उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, वो होता है कि हमारे दोस्त ने जो सिलेक्ट किया है, राइट, हम भी वही सिलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं करें ऐसा। आपके फ्रेंड ने जो सिलेक्ट करी है, कोई जरूरी नहीं है। पहले जरूर होता था, जब फिजिकल कैंपस होते थे, तो फिजिकल कैंपस में लोग ये करते थे कि चलो दोनों साथ में जाएंगे। थोड़े मुंबई कैंपस है, जैसे मेरा सेंटर मुंबई था, मुंबई जाएंगे, मुंबई में थोड़ा मरीन ड्राइव पे घूमेंगे। ओके, थोड़ा एंजॉय करेंगे, 1-2 दिन वहां पर साथ में रहने को भी एक सपोर्ट हो जाएगा। अभी वो सब प्रॉब्लम्स तो खत्म हो गई। यस, नाउ एवरीवन इज गोइंग फॉर वर्चुअल कैंपस। वर्चुअल कैंपस में ये सब प्रॉब्लम खत्म है, आपको घर बैठ के आराम से इंटरव्यू देना है। तो सेंटर सिलेक्शन के टाइम पे आप दूसरा एक क्राइटेरिया स्टूडेंट से सोचते हैं कि नंबर ऑफ कंपनीज। जैसे मैंने आपको बोला, मुंबई में सबसे ज्यादा कंपनीज, तो स्टूडेंट्स को लगता है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मुंबई में, फिर मुंबई सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, कई लोग ये देखते हैं कि पिछली बार ये कंपनीज आई थी, तो उन कंपनीज के बेसिस पे ले लेते हैं। ये सब क्राइटेरिया गलत है। ठीक है, इसका एक जनरलाइज आंसर कभी भी नहीं मिलेगा आपको। इसमें चीजें मैटर करती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इसमें मैटर करते हैं आपके मार्क्स, इसमें मैटर करती है आपकी आर्टिकलशिप, इसमें मैटर करता है आपका प्रेफरेंस ऑफ प्रोफाइल, और उसके बाद आप मैटर करता है कि आप कौन से लोकेशन पे काम करना चाहते हैं। क्योंकि मुंबई सेंटर में अगर कंपनीज आई हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको फाइनल लोकेशन भी मुंबई मिलेगी। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन आईटीसी। आईटीसी में उनका प्लेसमेंट हुआ, पहली पोस्टिंग उनको मिली कोलकाता, इंटरव्यू सेंटर था मुंबई। कुछ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ स्विगी में, स्विगी ने पोस्टिंग दी बैंगलोर, इंटरव्यू सेंटर था उनका मुंबई। तो ये एक अजम्पशन लेना कि हम मुंबई सेंटर लेंगे और मुंबई में ही हमारा प्लेसमेंट होगा, ये गलत अजम्पशन। ठीक, तो ये दो जनरल मैंने देखे, स्टूडेंट इस बेसिस पे लेते हैं डिसीजन। एक तो रहता है कि पोस्टिंग हमको यहीं पे मिलेगी, और दूसरा डिसीजन ये होता है कि यहाँ पे कंपनीज बहुत ज्यादा आ रही है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप इन डिसीजंस के बेसिस पे मत जाइएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, मार्क्स, अटेम्प्ट्स, your preference of profile, your articleship experience, and which is the location where you want to work in, right? इन 5 के बेसिस पर ये डिसीजन होता है। जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग क्लास में हैंडल करते हैं, वी आई डू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद देम, अंडरस्टैंड ऑल दीज 5 थिंग्स, एंड देन वी सजेस्ट देम दैट दिस सेंटर यू शुड ऑप्ट फॉर। आई सजेस्ट यू द सेम थिंग। मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगा कि ये डिसीजन बड़ा डिसीजन है। ओके, और इस डिसीजन को जनरलाइज्ड वे में मत करिएगा। यस, एक जो एक जनरलाइज्ड होता है कि लाइक 100 लोगों को एक साथ बता दिया कि मुंबई सेंटर ले लो, इसमें सबसे ज्यादा कंपनीज आती है, तो इसमें बहुत लोग बाद में बहुत परेशान होते हैं। मैं हर साल देखता हूँ, हमारे पास बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जब सेंटर सिलेक्शन होता है, उनके किसी भी जगह शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते। एंड इट्स अ सैड थिंग, राइट? अगर कोई इतने बड़े कैंपस में आपकी एक भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आती, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाली सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने सीनियर से बात करिए, खासतौर पर उनसे जिन लोगों ने सिमिलर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए हैं आपसे, राइट? तो वो आपको फिर भी थोड़ा सा बेटर गाइड कर सकते हैं। बट स्टिल लाइक मेरा ये सजेशन है कि ये एक बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन है, इसको अच्छे से लेना है आप। या सो दिस इज अबाउट दी लार्ज सेंटर्स, राइट? जब स्मॉल सेंटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो स्मॉल सेंटर में डिसीजन इतना टिपिकल नहीं है, राइट? स्मॉल सेंटर में इसलिए टिपिकल नहीं है क्योंकि
स्मॉल सेंटर में कंपनीज वैसे ही कम हो जाती है। भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, ये जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ पे वैसे ही नंबर ऑफ कंपनीज कम हो जाती हैं। और दूसरा एक आपको ऑप्शन भी मिलता है जब लार्ज सेंटर में प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो स्मॉल सेंटर को आप बदल सकते हो आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, तो इसके लिए इतनी रश नहीं है। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंपनीज कम है, डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं आती है। बट ये जो डिसीजन है ये बड़ा क्रूशियल डिसीजन है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। कैंपस की प्रोसेस पर आ जाते हैं। कैंपस की प्रोसेस क्या है बेसिकली? सो कैंपस की प्रोसेस के अंदर ये करें कि अ, अगर हम ये माने कि आपके रिजल्ट जो है वो अभी जैसा बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ फेब, सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ जैन, न्यू ईयर शुरुआत होते से ही आपको रिजल्ट्स दे दिए जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। यस सर। ओके ग्रेट। तो अगर हम वो पॉइंट लेकर चलते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था, तो करीब 17 जनवरी से 24 जनवरी, राइट, यानी कि थर्ड वीक ऑफ जैन में आपको कैंपस फॉर्म फिल करना है। ओके, कैंपस फॉर्म की डेट्स आ जाएंगी। उसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो सेंटर सिलेक्ट कौन सा करना है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी है। और दूसरा होता है कि फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कुछ डाउट्स होते हैं कि फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, उसका एक डिटेल्ड फॉर्म होता है। तो ये बात के लिए आपको 17 से 24 जनवरी के बीच में अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। ठीक है, मतलब आज से एक महीने बाद। ठीक है, तो टाइम अब बहुत ज्यादा नहीं बचता है। जैसे रिजल्ट्स आते हैं, देयर इज ऑलवेज अ रश, थिंग्स गोज वेरी फास्ट। आफ्टर दैट कंपनीज विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट। कंपनीज, आप जब फॉर्म फिल कर देते हो तो कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करती है, राइट। जैसे कि 10,000 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस ये देखेंगे कि हमको कितने लोगों को इसमें से, कितने रिज्यूम हमको अच्छे लगे। तो ऐसे करके रिलायंस शॉर्टलिस्ट करती है, एल&टी शॉर्टलिस्ट करती है, वेदांता शॉर्टलिस्ट करती है, आईटीसी शॉर्टलिस्ट करती है, बीपीसीएल शॉर्टलिस्ट करती है। तो ये कंपनीज शॉर्टलिस्ट करके पोर्टल पे बता देती है। तो हर स्टूडेंट का एक इंडिविजुअल पेज होता है पोर्टल पे, मतलब जैसे आप लॉगिन आईडी होते हैं आपके, तो उस लॉगिन आईडी से आप देख सकते हो कि आपको किन कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया, राइट। तो जैसे सपोज किसी स्टूडेंट को 6 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करे, राइट। तो 6 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने का के बाद उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को 4 कंपनीज सिलेक्ट करनी होती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि भले ही आपको 10 कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर रही है, 20 कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर रही है, आप मैक्सिमम 4 कंपनीज को ही सिलेक्ट कर सकते हो, और उन 4 कंपनीज में ही आप अपीयर हो सकते हो। क्योंकि हर एक के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर हर एक को 60 कंपनीज में बैठने का मौका मिल गया, तो कंपनीज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यू हैव टू अपीयर ओनली इन 4 कंपनीज। सो कंपनीज विल शॉर्टलिस्ट यू फर्स्ट। ठीक है, और कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग के बाद आप कंपनीज को, ज्यादा से ज्यादा 4 कंपनीज को दे सकते हो शॉर्टलिस्टिंग का कंसेंट, और उन 4 कंपनीज के इंटरव्यू में आप बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये कब होगा? तो कंपनीज विल शॉर्टलिस्ट यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब बेस्ड ऑन पास दिस थिंग। और सेकंड वीक ऑफ फेब में आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हमको कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये जो कंपनी सिलेक्शन का फंडा है ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ कंपनीज है। एक तरफ रिलायंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बेसिक अजम्पशन लेके चलते हैं कि किसी ने मुंबई सेंटर सेलेक्ट करा है, और उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के क्राइटेरिया के हिसाब से वो फिट होते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शॉर्टलिस्ट करा है, जो कि आ रही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोफाइल के लिए। फिर एक है जो लेट्स से एचपीसीएल, जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फिर एक कंपनी है जो लेट्स से बिग फोर, विच इज कमिंग फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन। फिर एक कंपनी है लेट्स से कोई फॉरेन बैंक या बैंक, विच इज कमिंग फॉर क्रेडिट मैनेजमेंट। तो अब आपके सामने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैंकिंग, टैक्सेशन, एफपी&ए, विद वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ कंपनीज। कोई पीएसयू है, कोई प्राइवेट है, कोई बिग फोर है। तो ऐसे करके अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से आपको दिख, तो ये एक डिसीजन वापस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इनमें से कौन सी कंपनीज को
सिलेक्ट करें। तो पर्सनली स्पीकिंग मेरा ये मानना है कि दो आपके लिए बड़े डिसीजन रहते हैं, एक तो सेंटर सेलेक्ट करना और दूसरा कि कौन सी कंपनीज को हमको कंसेंट देना फॉर इंटरव्यू पर्पस। तो दोनों ही केसेस में मेरा सजेशन यही है कि ऑलवेज टेक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, राइट। जनरलाइज्ड गाइडेंस लेने की बजाय हमेशा पर्सनल गाइडेंस लीजिए, 1-to-1। उसके बाद ये प्रोसेस खत्म होने के बाद आई थिंक वंस ऑल दिस इज डन, then your interview will start from second or third week of February, right? सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ फेब से, जैसे कि 21 फेब था लास्ट टाइम, 21 फरवरी से प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। इस बार भी मुझे लगता है कि 21 फरवरी से प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम आज से काउंट करते हैं तो समवेयर अराउंड 2 months, यस, विच इज अ गुड टाइम, ओके, फॉर ऑल काइंड ऑफ मेंटल प्रिपरेशन एंड ऑल काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। तो 2 months के बाद आपके इंटरव्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये टाइम जो है इसको आपको प्लान आउट करना है इस हिसाब से, ठीक है। इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो, इस मोमेंट पे डेफिनेटली जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ बातें करी थी कि थोड़ा बहुत इंडेज देखना, जो कि बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडेज को इग्नोर कर देते हैं, ओके। थोड़ा जनरलाइज्ड प्रिपरेशन करते हैं, ओके। नीड टू हैव गुड प्रिपरेशन, इंडेज की इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन होती है। थोड़ी सी ऑडिट रिलेटेड प्रिपरेशंस अगर आप फॉर्म्स को टारगेट कर रहे हो, तो इस तरह की बातें हैं, मैं और उसको एलाबोरेट करता हूँ बाद में। बट आई थिंक दिस इज क्लियर, यस। कैंपस प्रोसेस में तो अभी तक के जो भी हमारे डिस्कशन हुआ, ठीक है, जिस किसी का कोई सवाल हो, यस, लेट्स मेक इट टू वे, यस। Sir, my name is Kunal. कुणाल, Basically, I met you in orientation course of ICI. ओके ओके, नाइस। Okay, sir. Basically, can you please provide the profile where the company pay the most of the amount? A specific profile. जहां पर हायर पैकेजेस जाते हैं, Yes, yes. ओके 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 ओके। मुद्दे की बात कर दी आपने, यस कुणाल। तो मुद्दे की बात यह है कि हायर पैकेजेस जो हैं, राइट, हायर पैकेजेस जाते हैं जनरली प्रोफाइल वाइज नहीं जाते हैं, कंपनी वाइज जाते हैं पैकेजेस। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अ, वेदांता वेदांता कम्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल एंड दे ऑफर समवेयर अराउंड 20 lakhs। और वही अगर हम बात करते हैं कि दूसरी कंपनीज आती हैं, फॉर एग्जांपल मिंडा इंडस्ट्रीज। सो मिंडा इंडस्ट्रीज भी Hmm. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए आ रही है, लेकिन वो ऑफर कर रही है 9 lakhs। तो प्रोफाइल से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है जितना कंपनी से फर्क पड़ रहा है कि कौन सी कंपनी। फिर भी लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये है कि ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पैकेजेस जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, Okay. इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, नॉट ओनली द फर्स्ट जॉब लेकिन ग्रोथ के हिसाब से भी IB is the paid mostly paid profile. But again the Okay, sir. question is that the openings are very very limited, right? Openings are like hardly maybe in the campus you will hardly find any core IB profile। जो 10,000 सॉरी जो हमने 3,500 ऑफर्स बोले, उन 3,500 ऑफर्स में से एक भी IB का ऑफर नहीं होता है, जीरो। कोर IB की अगर हम बात करते हैं Mm-hmm. तो उसके लिए ऑफ कैंपस अप्लाई करना, ऑफ ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना एकमात्र ऑप्शन, ठीक है। Okay. ऑल राइट, और बताइए, यस, एनी अदर क्वेश्चन अभी तक का जो भी डिस्कशन है। यस, एज यू सेड इन कंपनी सिलेक्शन it depends on personalized strata, but what are the general points we can consider in choosing them? देखो, जनरल पॉइंट्स इज these 5 factors: number of attempts, marks, if you have any specific criteria, your articleship experience and your criteria for job posting, yes। तो इनके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
बहुत ही इसको जनरलाइज्ड करना, दैट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, जनरल पॉइंट्स इसके अंदर नहीं है। सर मैं आस्क यू क्वेश्चन। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। सर कंपनीज का भी कोई क्राइटेरिया स्पेसिफिक होता है कैंपस प्लेसमेंट में कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतना ही होना चाहिए तभी हम आपको सिलेक्ट करेंगे या फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे? यस 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 यस, एक्चुअली वही वही सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि कंपनीज का जो क्राइटेरिया है वो रहता है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, बीपीसीएल, एचपीसीएल, वेदांता, आईटीसी, ये सबको फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए, सारी ही कंपनीज को फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सम आर लुकिंग फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो इन्हीं कंपनीज के लिए कई लोग तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। दे डू नॉट सी वेदर दे विल गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इट और नॉट। तो मैं आप लोगों को सभी को एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ, दैट वी हैव कम अप विद द फर्स्ट जॉब प्रेडिक्टर। फर्स्ट जॉब प्रेडिक्टर में ये करा था हमने कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग की पॉसिबिलिटी कहाँ है सबसे ज्यादा, बेस्ड ऑन ऑल दीज 5 पैरामीटर्स। और फिर हमने एक बताया था कि लाइक इस तरह से ये वाली कंपनीज आपके सामने आ सकती है। ठीक है, तो आई जस्ट शो यू वन सैंपल ऑफ दैट एज वेल। तो आप लोग भी चाहो तो एक बार का फर्स्ट जॉब प्रेडिक्शन कर लेना चाहिए। एंड डेफिनेटली इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग, बिकॉज हम लोग को हर एक स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअली करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि प्री रिजल्ट्स हैं तो आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर इट। सो देखो, जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए हमने ये प्रोवाइड किया था, इफ यू आर एबल टू रीड दिस, उन्होंने हमको कुछ डेटा पॉइंट्स बताए थे उनके बारे में। ओके, और उसको, सो प्रिडिक्शन क्या था उनका? ओके, तो आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ दैट this career journey starts from predicting career opportunities which may come after qualification, and it is always a smart technique to prepare according to the shortlisting you might get in ICI campus। ये गोल्डन लाइन है आपके लिए। गोल्डन लाइन इसलिए है क्योंकि आप रिवर्स प्रिपरेशन ही करो, राइट? ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज पढ़ने के लिए 8 सब्जेक्ट है, हम 8 सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें। नो, ये तो गलत करते हैं लोग, सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, हर प्रोफाइल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बी इट इंटरनल ऑडिट, बी इट स्टेट ऑडिट, बी इट इन्वेस्टमेंट बैंक, बी इट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, बी इट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सब कुछ पढ़ते हैं और आखिरी में कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब क्या छोड़ें क्या पढ़ें। तो ये क्योंकि गलत तरीका है। वो तरीका ठीक है एग्जाम्स तक ओके था, अब आपको रिवर्स सोचना है। रिवर्स ये सोचना है कि हमारी शॉर्टलिस्टिंग किन कंपनीज में आ सकती है, या हम कहाँ पर ऑफ कैंपस सेलेक्ट हो सकते हैं। और ये बहुत क्लियरली विजिबल है, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट एंड शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स। हम लोगों ने करीब 2000 स्टूडेंट्स का डेटा देखा हुआ है इतने सालों में। वी नो वेरी वेल कि किन जगहों पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग की पॉसिबिलिटी है, एंड 80% व्हाट वी प्रेडिक्ट इज राइट। 80% टाइम्स, 20% ऑब्वियसली हर बार कुछ ना कुछ चीजें बदलती हैं, बट 80% इज अ गुड नंबर। ठीक है, तो जैसे इनके केस में क्या क्या शॉर्टलिस्टिंग की पॉसिबिलिटी है? क्रेडिट मैनेजमेंट रोल विद बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बिग फोर ऑफशोर प्रोफाइल लाइक पीडब्ल्यूसी, एसडीसी, यूआई, जीडीएस एंड ऑल, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोफाइल्स एंड सम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अब इनको बड़ा क्लियर है कि मुझे क्रेडिट मैनेजमेंट रोल की तैयारी करना है। बैंक का अगर इन्होंने आर्टिकलशिप नहीं देखी है तो क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए ये इनको मुश्किल आएगी। तो इनको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे आज से क्रेडिट मैनेजमेंट की तैयारी कर। बिग फोर मुझे ऑफशोर प्रोफाइल के लिए हायर कर सकती है फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ऑफशोर प्रोफाइल में थोड़ी सी इंग्लिश के ऊपर फोकस किया जाता है, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी फ्लुएंट होनी चाहिए। प्लस स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो ये अगर आपने आज तक स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करा है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के कॉन्सेप्ट समझने। और फिर उसके बाद कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स, जैसे कि अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेबल्स, यहाँ पे इंड AS की तैयारी करनी। साथ में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर ये चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि हमें बिग फोर इंडियन ऑडिट से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ये ऑफ कैंपस अप्लाई करना है। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन अप्लाई कर दो।
ऑफ कैंपस। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे ऑफ कैंपस कितना एग्रेसिवली अप्लाई करना है, कैंपस में मेरे को चांसेस है या नहीं है, और है तो किस टाइप की कंपनीज के चांसेस है, किस पैकेजेस के चांसेस है। एक्सपेक्टेड पैकेज भी जैसे हमने इसमें बता दिया है कि इतना एक्सपेक्टेड पैकेज है। फिर उसके बाद व्हाट टू प्रिपेयर, टेक्निकल इंटरव्यूज में क्या प्रिपेयर करना है, इंडेस प्रिपेयर करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रिपेयर करना है, और क्रेडिट मैनेजमेंट प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके अलावा आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको दुनिया की सारी प्रोफाइल्स के बारे में पता चल गया कि इस प्रोफाइल में ये होता है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, उससे कुछ फायदा नहीं। मैंने इंडस्ट्री में आई हैव वर्क फॉर मेनी मेनी इयर्स, राइट। इंडस्ट्री में मैंने काफी सालों तक काम किया है। मैं आपको इतनी प्रोफाइल्स के बारे में बता सकता हूँ कि वी कैन नॉट काउंट। तो उतनी प्रोफाइल्स के बारे में जान के कुछ फायदा नहीं। कैश मैनेजमेंट, ट्रेजरी, FP&A, राइट, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, कंसोलिडेशन, फिक्स असेट अकाउंटिंग, फिर ERP इम्प्लीमेंटेशन, IT ऑडिट, GRC कंप्लायंसेस, स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, कितने ऐसे हजारों प्रोफाइल्स है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, लेकिन पुट योर टाइम इन द राइट डायरेक्शन। जिस आपको शॉर्टलिस्टिंग अगर पता है आपकी, ठीक है, जिसके हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को आप रेडी करें। लास्ट टाइम हमने कैंपस क्विज करी थी, राइट। उस कैंपस क्विज में ऑल्दो पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड वेल, बट स्टिल इंडिया के जो क्वेश्चंस है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, आई बिलीव ओनली 20% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू आंसर दैट, टू नॉट विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है। सो जो चीजें आपको पता है कि जो सालों से चली आ रही है, इंडेक्स पूछे जाते हैं, इंडेक्स 115 इंपॉर्टेंट है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक वहां पर स्टूडेंट्स को ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है। ठीक है। तो फर्स्ट जॉब प्रेडिक्शन में आपको ये चीज हेल्प कर सकती है। मैंने ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर किया हुआ था दिस फर्स्ट जॉब प्रेडिक्शन। आप उस फॉर्म को फिल कर दो, और टीम विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट दिस वन। नीड ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अभी देखो, इस केस में ये भी एक क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि आपको GD की तैयारी करने की कितनी जरूरत है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम लोग कितना एफर्ट डालें GD में, GD होगा भी कि नहीं होगा हमारे केस में। तो ये भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर GD होने वाला है तो अभी से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक और चीज हमने बता दी थी कि एडिशनल रिकमेंडेशन क्या है। जैसे ही रिजल्ट आए वैसे ही ऑफ कैंपस के लिए एग्रेसिवली अप्लाई करो। ठीक है। इनकी प्रोफाइल के हिसाब से ये बड़ा क्लियरली विजिबल था कि इनकी शॉर्ट लिस्टिंग लिमिटेड आने वाली है। तो अप्लाई ऑफ कैंपस एग्रेसिवली। तो अगर एग्रेसिवली अप्लाई करना है तो आज से ही, जब आपके पास टाइम है अभी यहाँ पर, तो अपने लिंक्डइन के कनेक्शंस प्लस अपने जॉब के कनेक्शंस, अपने रेफरेंसेस आप अभी से बिल्ड कर सकते हैं। यस। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है। बाकी यू टॉक्ड अबाउट आवर प्रोग्राम ऑल्सो, जो 21 डेज का प्रोग्राम है उसकी भी डिटेल्स इसमें दी हुई है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जॉब प्रिडिक्शन वर्कआउट करें। आप लोगों को भी अगर अपनी प्रोफाइल के बेसिस पर जॉब प्रिडिक्शन रिक्वायर्ड है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने भेजा हुआ था जॉब प्रिडिक्टर, उसके लिंक, उसमें आप उसको फिल करिए। और अगर नहीं हो आपके पास अवेलेबल, ठीक है, तो मुझे आप बताइएगा। वी विल अगेन सेंड टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो स्ट्रेटेजी क्लियर है सभी की। इट्स अ वेरी वास्ट सिलेबस एंड वी कैन नॉट रीड ईच एंड एवरीथिंग। यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव डू अ स्मार्ट प्रिपरेशन ऑफ दैट। ठीक है। एक क्वेश्चन होता है फिलिंग अप द कैंपस फॉर्म्स। तो वो आपके पास जब फॉर्म सामने आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसमें जो टिपिकल पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। सेंटर सिलेक्शन, ये वो सबसे टिपिकल पार्ट है। Okay, I'll again send the job predictor link on WhatsApp. Yes. After that, what is the process? Selection process क्या रहती है? तो सबसे पहला होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट। रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरियाज क्या रहते हैं?
रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया है मार्क्स, अटेम्प्ट्स, समटाइम्स एड्रेस, नॉट एड्रेस बट समटाइम्स लोकल कैंडिडेट को भी कुछ प्रेफरेंस मिलता है, समटाइम्स इट इज द क्लाइंट्स दैट यू हैंडल, इफ यू हैंडल सिमिलर क्लाइंट्स, तो इस तरह की चीजें होती है। मैक्सिमम इट इज अटेम्प्ट्स एंड मार्क्स। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन और आता है कि अटेम्प्ट कैसे काउंट होता है, अटेम्प्ट की काउंटिंग कैसे होती है। तो अटेम्प्ट की काउंटिंग अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट उसको काउंट करते हैं फ्रॉम द एलिजिबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई पहली बार एलिजिबल हुए नवंबर 22 में फाइनल देने के लिए तो वहां से अटेम्प्ट काउंट होते हैं। तो नवंबर 22, मई 23 और नवंबर 23 में अगर वो क्लियर होते हैं तो 3 अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो जाता है, ये माना जाएगा। सो ये उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब किसी ने मई 23 में फर्स्ट ग्रुप दिया, नवंबर 23 में सेकंड ग्रुप दिया, तो क्या वो एक काउंट होगा क्योंकि उन्होंने एक एक बार में दोनों ग्रुप देके क्लियर कर दिया? नहीं, उसको 2 काउंट किया जाता है। तो ये बात क्लियर है सभी को दैट हाउ अटेम्प्ट गेट्स काउंटेड। ओके, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये मैटर कर जाता है। ठीक है, अगेन जो मैंने एग्जांपल दिया आपको जो लार्ज कंपनीज के हैं उसमें मैटर करता है। विप्रो आती है, विप्रो बिल्कुल क्लियर क्राइटेरिया लेकर आती है। क्या क्राइटेरिया रहता है विप्रो का? विप्रो का बड़ा क्लियर क्राइटेरिया है दैट इट इज ईदर 3 अटेम्प्ट्स और इट इज 4 अटेम्प्ट्स। कई बार वो 3 अटेम्प्ट्स तक के कैंडिडेट्स को हायर करती है, कई बार 4 अटेम्प्ट्स के कैंडिडेट्स को हायर करती है। ठीक है, तो again I am just telling you the point that you should be very clear about your shortlistings and 80% time it is same, right? पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं कि 80% टाइम इट इज मोर और लेस सेम। तो उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम आप इन्वेस्ट करो। जो लोग को लग रहा है कि हमारे 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट के में हमारा फाइनल क्लियर हो रहा है, विप्रो के रिटर्न टेस्ट की तैयारी आज से ही करनी चाहिए। विप्रो का जो रिटर्न टेस्ट होता है वो बहुत टिपिकल टेस्ट होता है क्योंकि उसमें मैथ्स, रीजनिंग दोनों पूछी जाती है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों चीजें पूछी जाती है और तीनों ही लेवल थोड़ा सा हायर साइड पे ही होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो ये एक नई चीज है, ये आज तक हम लोगों ने फेस नहीं करी है। एंड विप्रो इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट। आई नो लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग फ्रॉम 2018 और अब 2023 आ गए, 5 सालों से वो विप्रो में है, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं जो बार बार नहीं मिलती हमें, और ये मिल रही है अगर तो थोड़ा इसके लिए अगर आप एफर्ट डालोगे तो ऑलवेज विल हेल्प यू। तो सबसे पहले आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, राइट? उस रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद जैसे रिटर्न टेस्ट है, कई कंपनीज रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। जैसे मैंने आपको विप्रो का एग्जांपल दिया, ऐसे ही एलएनटी भी इसी तरह का टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है। फिर कुछ कंपनीज होती हैं जैसे फ्यूचर फर्स्ट करके एक कंपनी है, वो रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। तो यहाँ पर टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। सेकंड, जीडीज, ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस वर्चुअल कैंपस पे जब से चीजें शिफ्ट हुई हैं, राइट, ग्रुप डिस्कशंस कम हो गए। ओके, तो अच्छी बात है। जो लोग थोड़ा ग्रुप डिस्कशन से हेजिटेट करते हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि जीडीज कम हो गए। ठीक है, लेकिन अ, अभी भी कंपनीज करवाती हैं। वेदांता हो गया, आईओसीएल हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी करवाती हैं जीडीज। ठीक है, तो आप अगेन वेदर यू विल फेस जीडी और नॉट, अगेन इट डिपेंड करता है। तो इसलिए लाइक फर्स्ट जॉब प्रेडिक्शन में उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, थर्ड इज टेक्निकल इंटरव्यूज। टेक्निकल इंटरव्यूज के हमने कुछ सैंपल्स लिए थे लास्ट क्विज में। यस, आई कैन सी फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हु जॉइंड इन टुडे सेशन, राइट, जो उन लोगों ने लास्ट क्विज में भी पार्टिसिपेट करा था। तो कुछ क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस जो होते हैं, राइट,
और पर्सनली स्पीकिंग 70% जो इंटरव्यू है वो टेक्निकल इंटरव्यू पर ही जा रहा है. 30% is your how you speak, what you speak. This 70% is on technical interviews. राइट. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं पूछता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस आई डू आस्क दिस क्वेश्चन कि एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू 5 करोड़ है, ठीक है, स्टार्टअप कैटेगरी में, उसका मटेरियलिटी लेवल आप कैसे सेट करोगे? ठीक है, 5 करोड़ का अगर रेवेन्यू है तो उसका मटेरियलिटी कितना होना चाहिए? ठीक है. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के बड़े अलग अलग आंसर्स आते हैं. मैं भी आपसे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में लेता हूँ, ठीक है, जो भी आंसर देना चाहते हैं कि 5 करोड़ की स्टार्टअप रेवेन्यू की कंपनी है जो स्टार्टअप कैटेगरी में, उसका अ, कितना मटेरियलिटी लेवल होना चाहिए? तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस को आपको आंसर करते हैं आना बहुत ज्यादा जरूरी है. टेक्निकल राउंड इज ऑल अबाउट सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस, बोथ बेस्ड ऑन इंडेस, बोथ बेस्ड ऑन ऑडिट. और फिर डिपेंड करता है कि सपोज आप फाइनेंस की प्रोफाइल के लिए अगर हो तो फिर फाइनेंस रिलेटेड प्रोफाइल्स, फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस है. ठीक है. तो टेक्निकल राउंड हर कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, फिर पर्सनल राउंड और फिर फाइनल पार्टनर. ठीक है. तो आपको एटलीस्ट टेक्निकल इंटरव्यू के लिए अपने आप को पूरी तरह से रेडी रखना है. हर कंपनी टेक्निकल राउंड तो शॉर्ट ऑर्गेनाइज करेंगे. ठीक है. What we do is obviously we have a super 60 batch, right? We always take a limited number of students, right? And it does not exceed 60 students so that we can provide them the quality preparations. Yes, they will get them the personalized attention. So we actually, whichever mode is there, right? Whether it is online or offline, we in the all offline batch which we have in the morning, right, and online batch we have in the evening. Both has limited number of students, right, and that's where you can speak up, right? Your speaking is very very important. 80% of the sessions I do take, right? So I take sessions on Indies. 6 days we spend on Indies, right? 6 to 7 days. I believe that is very very important. तो ऐसा नहीं है कि लाइक 2 hours 3 hours में वी नीड टू टेल यू कि ये इंडेक्स प्रिपेयर कर लेना घर जाकर. नो, it has to be prepared in the class. So 90% of our India's based questions they get asked in the interviews, right? The best part is कि इतने सालों में सारे ही क्वेश्चंस हमको पता है कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, whether it is India's or whether it is audit related questions, whether it is internal audit and whether it is related to finance. All these sessions I do take along with HR related questions. We call for direct tax and indirect tax faculty from outside, right? So those who are working for big fours, right? So for everything, yes, definitely, you know that. Again, I will always I try to make this awareness that this part is done, right? Just watching and looking from outside, right? ये part हो चुका है आपका. पेन ड्राइव पे ऐसी ही प्रिपरेशन करते थे जिसमें आप केवल और केवल देख रहे हो. ओके. नाउ द टाइम हैज कम व्हेन यू शुड स्पीक अप. ओके. इंटरव्यूज में आपके लिए एक सडन सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि आप अभी भी केवल देख रहे हो. तो इसलिए क्लास, जैसा अभी हम लोगों ने पैटर्न रखा है, लास्ट क्विज में भी आपने देखा होगा, वी हैव अनम्यूटेड ऑल द स्टूडेंट्स माइक. ओके. तो इट इज जस्ट लाइक द ऑनलाइन क्लास, फेस टू फेस क्लास. तो आप लोगों को हमेशा that clarity has to be there कि we need to speak. Okay. All these guidance sessions are taken care by me, right? Uh, Fortunately, I have got multiple companies experience, right? Starting with Idea Cellular, worked for Tikona Digital, which was in a startup category. Worked outside India for 2 years in Malaysia, and then worked as a CFO for the subsidiary of Apollo Group. So I am very fortunate that I have got that kind of experience along with this interaction with so many students for last 5 years. So we have this career guidance specifically
for the students so that they can plan their career journey very well. Okay. Right. This is so specific emphasis right on these sessions. So जो 21 days के हम लोगों के sessions होते हैं, उनमें 6 sessions in days पर, 3 sessions audit पर, 4 sessions FM पर और 2 session taxation पे. ये bare minimum है. Or it is a practical way of learning all these things. Yes, very specific campus oriented sessions. Right. So this is all available. Abhi right now, those who are trying for their preparations, yes, they can get our latest recordings. Right. जो latest recordings हैं उससे at least they can start. कई सारे स्टूडेंट्स को ये कंसर्न होता है कि लाइक अगर हम अभी स्टार्ट करेंगे और इन केस वी कुड नॉट क्लियर, राइट, देन व्हाट विल हैपन. तो फॉर देम व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गिवन देम ऑलमोस्ट we are charging the fee post results only, right? So the entire fee is divided into 2 parts. The total fees is 3,999. So 999 we are charging now, and post results, if it comes successful, then the students have to pay. Otherwise, they do not have to pay, right? So that is the kind of comfort the students were looking for. क्योंकि pre results इतनी clarity नहीं होती है. So that comfort we are giving, but at least you can start your preparation, right? Baki details will ask they will office, they will send you all the details. बहुत सारे स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स ज्यादा हो जाते हैं. कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि हमारे अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, राइट? तो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, राइट, वो अटेम्प्ट आपको ये चीजें स्पेसिफिकली होनी चाहिए दैट ऑल्दो वी आर ट्राइंग कि हम लोग थोड़ा अटेम्प्ट वाइज बैच में भी वो चीज यूज करें, बिकॉज आई कैन वेरी क्लियरली सी कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है. ओके, तो दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर हैविंग सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ. उनकी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली अलग है. तो आप लोगों को भी ये चीज सोचनी है कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या हमारे अटेम्प्ट के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये बाद में रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं. यू नीड टू डू इट at a very early stage, and that's why again personalized and customized strategy has to be there, right? So this is about this one. कैंपस की अगर हम फाइनल कुछ लास्ट 5 मिनट्स में और बात करके इस सेशन को क्लोज करेंगे, तो व्हाट आर द इजी अपॉर्चुनिटीज इन द कैंपस. इजी अपॉर्चुनिटीज क्या है कैंपस के अंदर? तो कैंपस के अंदर इजी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री, फर्म्स और बैंक्स. ठीक है, मतलब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज यही मिलेंगे आपको जो ग्रीन में है, राइट? इंडस्ट्री लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, एलएनटी, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए. मतलब आपको एक तरह से जो हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में पढ़ा है, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, फिक्स्ड असेट्स अकाउंटिंग, ये सब चीजें. ठीक है. सेकंड इज फर्म्स. फर्म्स, बिग 4, बिग 6, बिग 10 एंड अदर फर्म्स, और उनके भी इंडियन ऑफिस और ऑफशोर ऑफिस, ऐसे 2 जगह. ऑफशोर का मतलब ये नहीं मानना है कि हम ऑफशोर चले जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे. नो, इसमें उल्टा है. इंडियन ऑडिट इज बेटर देन ऑफशोर ऑडिट एनी टाइम. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑफशोर के लिए काम करते हैं लेकिन काम इंडिया से ही करते हैं, ऑफशोर ऑडिट. ठीक है. अगर आप बाहर जाके डॉलर से पैसा कमाते तो खैर बात ही अलग हो जाती. तो मैं आपको ये बोलता है कि ऑफशोर ऑडिट इज बेटर, लेकिन काम बाहर के लिए कर रहे हैं और काम इंडिया से कर रहे हैं, तो ये इतना खास सिनेरियो नहीं है. इसलिए बेटर ये है कि इंडियन ऑडिट जो है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, थर्ड इज बैंक्स. ये मत सोचिएगा कि हमारी बैंक से रिलेटेड आर्टिकलशिप नहीं हुई है तो हमारा बैंक में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. 100% होगा इफ यू विल प्रिपेयर वेल फॉर बैंकिंग इंटरव्यूज. ठीक है. तो बीइंग अ फ्रेशर, डू नॉट कीप एनी क्राइटेरियाज.
कि इसमें नहीं जा सकते हैं, उसमें नहीं जा सकते हैं, ये सब कैंपस में इजीली अवेलेबल हो जाती है ये प्रोफाइल्स। ठीक है। व्हाट इज डिफिकल्ट टू गेट? डिफिकल्ट टू गेट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग एंड इक्विटी रिसर्च। ये तीनों जो प्रोफाइल्स हैं, these three profiles are difficult to get। ठीक है। तो आप लोगों को इस बात का अगेन ध्यान रखना है, कैंपस कैंपस के लिए तैयारी करनी है, लेकिन कैंपस में क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है उसको भी अच्छे से समझ लो। और ये मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो लोग आईबी के लिए जाना चाहते हो। ठीक है। कैंपस में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आईबी का रोल शायद ही मिलने वाला है, तो पहले से ही उसके लिए ऑफ कैंपस अप्लाई करना स्टार्ट करो। ठीक है। अच्छा, ऑफ कैंपस और कैसे सपोर्ट मिल सकता है? कई लोगों के अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्या हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो वी हैव स्टार्टेड प्रोग्राम फॉर प्लेसमेंट असिस्टेंस ऑल्सो। हम लोग काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी सपोर्ट करते हैं थ्रू अवर कैंप्रेप करियर लैडर प्रोग्राम, राइट? तो सेम प्रोग्राम अप्लाइज टू यू एज वेल। ऑल दी स्टूडेंट्स जो सुपर 60 बैच में होते हैं, उन स्टूडेंट्स को हम प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। वी हैव वेरी लार्ज कम्युनिटी, दे आर वर्किंग फॉर almost all the top corporates. As I told you, my background also, many of my friends who are working as a CFO for very large organizations, so they also help us in placement for the freshers. So off campus is equally important for you. अगर आप थोड़ी सी नॉन ट्रेडिशनल प्रोफाइल्स में जाना चाहते हो, लाइक इक्विटी रिसर्च, लाइक फाइनेंस, लाइक कंसल्टिंग, तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि यू शुड थिंक ऑफ अप्लाइंग ऑफ कैंपस। और ऑफ कैंपस का सिंपल सोर्स है रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस आपको अभी से बिल्ड करना पड़ेंगे। यही एक तरीका है। यस। तो आपको अभी से ही जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। लोगों को बर्थडेज विश करो, हैप्पी एनिवर्सरी विश करो, न्यू ईयर विश करो, क्रिसमस आ रहा है क्रिसमस विश करो, जो भी आपको लगता है, राइट? जिस भी तरीके से आप लोगों के टच में आ सकते हो, रेफरेंसेस बढ़ा सकते हो। और एक लोग बोलते हैं लिंक्डइन पे एक्टिव एक्टिव हो जाओ, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। लिंक्डइन पे एक्टिव होना ठीक है, इट हेल्प्स, लेकिन केवल वो एक तरीका नहीं है। द राइट थिंग इज मीटिंग टू पीपल, उनसे जाके मिलकर और पर्सनलाइज्ड उनको आप फोन पे बात करो। ये सही वे होते हैं। लिंक्डइन पे तो आई हैव 6000 कनेक्शंस, राइट? लेकिन वो 6000 में से कितने लोगों को मैं पर्सनली जानता? यस। तो ये एक बात हो जाती है। ओके, तो इंडस्ट्री फर्म्स और बैंक्स, इनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, और इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। एक और बात यहाँ पर और ऐड करूंगा मैं, लाइफ में हमेशा प्लान ए और प्लान बी ये हमेशा रखिएगा। अ, कई लोग आपको बोलेंगे कि लाइफ में प्लान बी नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। हमेशा प्लान ए और प्लान बी रखो। ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और ये भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? मतलब स्मार्ट लोग तो प्लान ए बी और सी तीन रखते हैं। प्लान ए नहीं हुआ तो बी, और बी नहीं हुआ तो सी। आप कभी लाइफ में फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप प्रिपेयर्ड रहोगे हर चीज के लिए। तो सेम गोज फॉर कैंपस ऑल्सो। कई सारे बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं हम जाएंगे तो आईबी में जाएंगे, अदरवाइज कहीं नहीं जाएंगे। हम एक ही जगह फोकस करना चाहते हैं, फोकस इज डिफरेंट। लेकिन अगर एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं आती आईबी की, वैसे भी ओवरऑल स्टार्टअप का मार्केट इस साल खराब चल रहा है, तो आईबी की एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तो फिर क्या करो? तो ये सोच के आप प्लान बी भी बना के चलो, और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन। या ये एक एग्जांपल है बैंगलोर कैंपस का, इससे आपको क्लियरली दिख जाएगा। 38 कंपनीज आई थी, 38 में से 18 कंपनीज थी इंडस्ट्री में कैटेगरी में, 13 फर्म्स थी फॉर्म्स कैटेगरी में, दो बैंक्स आई थी, आईबी के नाम पर एक कंपनी आई थी, और वो भी कोर आईबी नहीं थी। ठीक है। तो इससे मेरे ख्याल से आपको लाइव क्लैरिटी मिल रही है कि कौन सी कितनी कंपनीज किस कैटेगरी में आ रही है। 18 कंपनीज इन द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री, 13 इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्म्स। ओके। तो एक बड़ा जो चंक है वो यहाँ पर चला जाता है। ठीक है। Right. So I believe this is all related to campus. Yes, and if you have any questions, yes, you can certainly ask me that. इससे related, campus related, या
और कोई अगर आपका करियर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सर, प्लीज। बेसिकली क्वेश्चन इज दैट कि इन द इनिशियल ईयर ऑफ आवर करियर, तो बिग फोर्स में जाके प्रैक्टिस करना, उस चीज को स्पेशलाइज करना बेटर है कि इंडस्ट्री में जाके उस चीज में सर्व करना? यस, दिस इज गुड क्वेश्चन। देखो, अगर आपका फ्यूचर प्लान है प्रैक्टिस, फ्यूचर प्लान आपका प्रैक्टिस है, नहीं सर, बेसिकली में। जॉब ही आपका फ्यूचर प्लान। हाँ जी। अगर आपका फ्यूचर प्लान जॉब का है, तो फिर आप या तो बिग फोर से स्टार्ट करो, और या आप इंडस्ट्री से स्टार्ट करो। मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर हम लोग सीएफओ की कैटेगरी, सीएफओ की तरफ जाने की सोच रहे हैं, राइट, तो हम्म। सीएफओ के लिए शुरुआत ही इंडस्ट्री से करो तो बेस्ट है, क्योंकि आपको इवेंचुअली इंडस्ट्री में ही आना है। कई सारे स्टूडेंट्स बिग फोर ज्वाइन करते हैं, बिग फोर में सोचते हैं 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर इंडस्ट्री में आएंगे। हाँ सर। वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जब आपको पता है कि आपको इंडस्ट्री में ही आना है, देन व्हाई टू गो फॉर ऑडिट फॉर्म्स, स्टार्ट योर करियर विद द इंडस्ट्री। बट जैसे सर आपने बताया अभी, अगर कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी अगर पिक करती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर एक सेगमेंट में फिक्स एसेट मैनेजमेंट में रख देते हैं, तो इट्स अ स्मॉल सेगमेंट, राइट? तो अगर 2 साल उसमें सर्व करने के बाद, कि आई डोंट थिंक कि इंडस्ट्री की कोई और कंपनी इस प्रोफाइल के अलावा उसमें चूज करेगी कैंडिडेट को। देखो, वंस यू आर इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिवीजन, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में आप हो, तो ये मत सोचो कि हम उसी में हमारी लाइफ निकल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। इफ यू आर इन इंडस्ट्री, certainly they will give you opportunity in other segment also, like financial, for financial consolidation, financial accounting, cash management, ऐसे आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड बी इन द इंडस्ट्री। जैसे कि लाइक मैं आइडिया में था, राइट, आइडिया से मुझे एयरटेल में जाना था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। भले ही थोड़ा सा प्रोफाइल भी चेंज हो रहा है, कंपनीज कर देती थी वो प्रोफाइल चेंज। दे लुक फॉर सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री, सिमिलर काइंड ऑफ रूल्स। उसमें वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं। आपने अगर वहां पर सैप सीखा था, अगर और दूसरी कंपनी में भी सैप है, तो वो ठीक है, मतलब थोड़ा रोल चेंज करके भी आपको दे देंगे। ठीक है ना, तो ये इंडस्ट्री इस तरह से देखती है। लेकिन अगर कोई सपोज बैंक में काम कर रहा है, उसको सडनली इंडस्ट्री में आना है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके। कोई सपोज बैंक में काम कर रहा है, उसको बिग फोर में जाना है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको बिग फोर में जाना है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इंडस्ट्री टू बिग फोर इज डिफिकल्ट, लेकिन बिग फोर टू इंडस्ट्री आप आ सकते हैं। तो ओके। ये फिर भी ठीक चीजें रहती है। लेकिन फिर भी मतलब मेरा मानना ये है कि जो भी डिसीजन है, अगर बेस्ट डिसीजन आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो जाता है तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर स्विच करना होता है 6 महीने 1 साल बाद, प्रोफाइल स्विच करना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी आप रख लो, सभी लोग, कि हम लोग अगर जॉब में जा रहे हैं, तो जॉब में जाने के लिए हमारा हमारा एक तो लोकेशन प्रेफरेंस क्या है। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग सोचते हैं कि हमको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, होम टाउन मिल जाएगा, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है। और अगर आप फ्री हो, फ्लेक्सिबल हो हर लोकेशन के लिए, तो उसके लिए एक अलग थॉट प्रोसेस है। और दूसरा, इतना सोचो लोगों की, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक प्रेफरेंस, कि लाइक मुझे आईबी में जाना है, मुझे टैक्स में जाना है, ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। बस ये दीज टू थिंग्स, इफ यू आर स्लाइटली क्लियर, तो फिर आपके लिए करियर डिसीजन उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। यस, और कोई क्वेश्चंस, एनीवन? हेलो सर। यस पीयूष। सर, जैसा आपने बोला, बैंकिंग कंपनीज जो है वो क्रेडिट मैनेजर हो गया, क्रेडिट एनालिस्ट हो गया, इनको टारगेट करती है। तो ऐसे और कोई प्रोफाइल्स है फाइनेंस के लिए जो अपने कैंपस में आती है, अदर देन बैंक? देखो, मैक्सिमम तो बैंक से आती है। अदर 3 कैटेगरीज में ही कंपनीज आती हैं जनरली, राइट। ये जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं, इंडस्ट्री, फर्म्स एंड बैंक्स, राइट। बैंगलोर कैंपस का जैसे हमने एग्जांपल भी लिया,
तो यही है बेसिकली, इंडस्ट्री, फर्म्स और बैंक्स, तीन कैटेगरीज में आती है। एक्सेप्शनल कैटेगरी की अगर बात करें तो एक्सेप्शनल कैटेगरी इज कभी कोई कंसल्टिंग फर्म आ गई, लेकिन इट वाज लाइक मे बी वंस इन 1000 केसेस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें। अगर आपको दूसरी साइड में जाना है, राइट, आईबी, कंसल्टिंग और इक्विटी रिसर्च, उसका एकमात्र तरीका है अभी से है, आप लोग रेफरेंसेस देखो और ये देखो कि कौन उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है। ठीक है, एक प्रोफाइल होती है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, सुना है आप लोगों ने? यस सर, सुना तो है बट ज्यादा होता है क्या है वो आइडिया नहीं है। जैसे आईबी में जिसको जाना है, आईबी समझो कि अ, ऐसा अज्यूम कर लो आप कि आईबी इज दी थर्ड स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज एफडीडी, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, दूसरी स्टेप है वैल्यूएशंस, और थर्ड स्टेप आ जाती है आईबी। ठीक है, तो ये एक मतलब प्रोसेस है पूरी, जिसमें आपको एक डील हो रही है, सपोज वोडाफोन और आइडिया, इन दोनों की डील हो रही है, राइट, और आप उसको लीड कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उसको लीड कर रहे हैं। तो उनकी जो करियर जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो ड्यू डिलिजेंस करते हैं। पहले एक ऐसी टीम में इन्वॉल्व होते हैं जो सॉर्ट ऑफ ऑडिट करती है, जैसे आप ऑडिट करते हो ना, वैसे इंटरनल ऑडिट करते हो। थोड़ा एफडीडी उस एंगल से होता है कि हम इस कंपनी के साथ अपने आप को मर्ज कर रहे हैं। राइट, डील्स क्या है, एक तरह से डील्स को अगर बहुत सिंपल वे में बात करें तो शादी की तरह हो, राइट, अरेंज मैरिज। एक पार्टी दूसरी पार्टी को असेस करती है कि हर तरह से ठीक है या नहीं है, राइट। तो आइडिया और वोडाफोन का एग्जांपल लेते हैं, तो आइडिया भी वोडाफोन को असेस कर रहा है, वोडाफोन भी आइडिया को असेस कर रहा है। इन्होंने जितने सब्सक्राइबर्स बोले उतने हैं या नहीं है, जितने टॉवर्स बोले उतने हैं या नहीं है, जितने रेवेन्यू क्लेम करी उतनी है या नहीं है, राइट। तो ये जो होता है, ये सब पार्ट होता है ड्यू डिलिजेंस का, राइट। ये वर्ड तो आपने पढ़ा होगा, ड्यू डिलिजेंस। तो इसमें सीएस को बहुत मौका मिलता है एफडीडी में। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर very much recognized here because you people have very good experience of doing audits। तो एफडीडी टीम में मौका मिलता है, एफडीडी से स्टार्ट मिलता है, और वहां से स्टार्ट होने के बाद आप लोग वैल्यूएशन की तरफ जा सकते हो। क्योंकि एक बार आप उस डील का पार्ट बन गए, भले ही आप केवल वहां पर ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का देखा है कि उसके थ्रू उन्होंने अपना करियर आईबी में बनाया, वहां से वैल्यूएशन पर आते हैं और वैल्यूएशन से फिर कोर आईबी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो सर्च पीपल हु आर वर्किंग फॉर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। मैंने देखा है हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स उसमें काम कर रहे हैं। सेकंड स्टेप होती है वैल्यूएशन, अगर आपको डायरेक्टली वैल्यूएशन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर फाइनल अगर आईबी मिल जाए, जो कि मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है डायरेक्टली आईबी मिलना, बट फिर भी कभी मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, उस टीम का क्या काम होता है, वो टीम मार्केट में सर्च करती है कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको खरीदा जा सकता है, कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका मर्जर करवाया जा सकता है। ठीक है, तो वो कोर आईबी के लोग होते हैं, वो ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो और बताइए, एनी अदर क्वेश्चन? सर आप इंदौर ऑफिस पे अवेलेबल हो सकते हैं क्या फ्री रिजल्ट, कभी कनेक्ट करना चाहे तो। इंदौर ऑफिस में मैं हो जाऊंगा अवेलेबल। हम लोग इंदौर में ही बैठते हैं, राइट। तो आप जब भी हो आपका, तो ऑफिस नंबर पे आप मैसेज कर देना, वो आपको टाइम बता देंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? Okay, great, fantastic. Now, those who joined today, right? I believe आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, राइट। ग्रुप में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पे आंसर करते रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस एंड ऑफ द डे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बनेंगे। आप अगर देखते हो तो ये पास्ट इंटरव्यू के क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को आंसर करते जाओ। जितना भी हम लोगों का मटेरियल अवेलेबल है, उस मटेरियल को देखो। लास्ट टाइम का जो कैंपस क्विज हुआ था, उस क्विज का भी वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उस क्विज के वीडियो को देखो, उसमें देखो कितने क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से जितना आप इस पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हो,
बिकॉज टाइम ज्यादा नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। आज 17th है, मेरे ख्याल से नेट नेट 5-10 डेज है आपके पास। उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा। न्यू ईयर का अपना सेलिब्रेशन में 4-5 दिन आपके जाएंगे, और उसके बाद फिर फर्स्ट वीक से आपको रिजल्ट की एंजाइटी होने लगेगी। तो टाइम कम है एक तरह से अगर देखा जाए तो। मेरे हिसाब से ये सब चीजें स्टेज पे कर लेनी चाहिए, बिकॉज पोस्ट रिजल्ट्स यू नीड टू एक्ट फास्ट। या so this is all from my side. I'll keep you posted with our upcoming webinars, new stuff, some study material, and all the required things. Yeah. So thank you very much once again for your active participation and patience listening. I wish you all the best for the upcoming results, and have a great time. Bye bye. Sir, हाँ जी, excuse बोलिए। me. Sorry, sir. I would like to thanks for you for all your efforts and your team's efforts and all the participants also, especially Kunal, because he gave a very much good inputs. Sir, I had a doubt about means I am 50-50 sure about if I am clearing or not. What my plan is now, if I don't clear, then I have to start the job now because this was my fourth attempt. So if even if I don't clear, I have to start my job, and my plan is to continue in that company or firm, whatever it is, after my qualification, because I'm very much sure I will clear in my fifth attempt. So I don't want to interrupt it. I want कि job के साथ पढ़ाई करूँ and then fifth attempt में clear करूँ. So any strategy about anything, because ये है आप कुछ help कर सकते हैं इस चीज में. देखो, मतलब इसमें ये है कि अ, इस बार आपने दोनों ग्रुप्स दिए, राइट? सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से ही दोनों ग्रुप देता आया हूँ. फर्स्ट मेरा May 22 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसमें थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आ गया था लास्ट मंथ में. फिर उसके बाद और आर्टिकलशिप भी चल रही थी बिकॉज मेरा कोविड की वजह से एक्सटेंशन हुआ. बहुत ही अलग ही स्टोरी है. सो ये सब चीजें देखते देखते November 23, देन May 23 में काफी नजदीक आया था, बट एग्रीगेट में वो इशू हुआ. तो नाउ दिस November 23 मेरा होप से हो जाएगा, बट कुछ कुछ लाइक एफआर वाज टफ एंड एक प्लान बी as you said. So देखो, पॉइंट ये आनंद की, आप 50-50 हो, राइट? तो yes, हमको तो 40 ही चाहिए होते हैं, राइट? तो मेरा तो ये yes. मानना है कि आप 50-50 हो तो आपका हो ही जाएगा। मतलब दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड आई वुड विश फॉर दैट। दूसरी बात ये है कि जॉब स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब मेरा सजेशन ये है कि यस, थोड़ा सा माइंड जो है हम लोगों का एक ही एक चीज पढ़ के कहीं ना कहीं स्टक होता है, और Mhm. हम लोग थोड़ा सा बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं अगर एक ही चीज बार बार रिपीट करते हैं। तो माइंड Yes. को भी थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन चाहिए होता है, और रिलैक्सेशन से ज्यादा माइंड नीड डाइवर्सिटी, तभी वो ठीक से वर्क कर पाता है। सेम चीजें कई बार हम लोग पढ़ते हैं तो वो उतने डीप में नहीं पढ़ पाते। Yes. तो जो लोग के अटेम्प्ट्स होते हैं, और एक स्टेज के बाद मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ उनको कि इन्वॉल्व योरसेल्फ इन समथिंग Mhm. अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। स्टडीज को एक पार्ट बनाओ, आप 2 घंटे 3 घंटे ठीक है पढ़ो आप डेली बेसिस पे, लेकिन करीब 4 से 5 घंटे कहीं ना कहीं आप और भी जगह इन्वेस्ट करो। और आई थिंक नथिंग बेटर देन डूइंग अ जॉब, क्योंकि वो आपको उसी तरह का एक्सपीरियंस देती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बाद में भी काम में आता है। तो ये तो मेरा भी सजेशन है आपको, जो आपका थॉट प्रोसेस वो बिल्कुल करेक्ट है कि प्लान बी यही रखो कि गो फॉर जॉब। और जॉब में डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल आती है जॉब ढूंढना, क्योंकि जब सेमी क्वालिफाइड होते हैं तो बहुत सारी कंपनीज ये बोलती हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आप छोड़ दोगे ये वाला जॉब हमारा। तो इस Yes. चक्कर में बहुत सारी कंपनीज हमको मौका नहीं देती है। Mhm. लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी मौका नहीं देती है। देयर आर कंपनीज विच गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी। तो ऐसी कंपनी सर्च करके फिर उसको ज्वाइन कर लेना, इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी। Thank you, sir. ओके, वेलकम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। ओके, आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। बाय बाय।